Yes, good evening, dear Avi, Hemant, Good evening, and sir. all Good watching evening, this sir. special program, Creative Talk. Today in this program, we have two star creativians, and I should say now successful IITians, Mr. Avi Bansal and Mr. Hemant Bansal, who were the topper of Gangapur city in JEE Main 2020. Once again, I welcome you both on the behalf of Creative Science Academy, Creative Public School. Today, through this program, we would like to know about the journey of simple school students to successful IITians. Moving ahead in this program, I would ask you some questions which will be common for you both. Okay, so moving ahead in this program, first of all, I would like to ask you one question. Uh, how was your journey in creative school, Avi? Hello, sir. First of all, good evening to everyone who is in Facebook Live. So, my journey from creative starts from KG class when I joined creative, and it continued till 11th class. So, my journey was quite of amazing. I love the main build up I got from creative only. So, I would yeah. So I would like to say that when I joined creative, I was like a normal student as everyone is there. But due to the help of teachers and due to guidance of teachers, we are able to in Facebook Live and talking to you. So this work get close to creative for making us capable of doing so. So I joined creative in KG class. Then everything was good, was well. Then I also joined creative ashram in 10th class. It was a very amazing experience. Uh, Actually, the shape I built up from an average student to something above than average was started from the creative ashram journey, where I got exposure to different things, and that continued to 11th class and then 12th class, and finally from God's sake I got a good rank. So this was my journey in creative school. Okay, Hemant, we would also like to listen you about your journey in creative. Good evening, everyone. I am Antoine, sir. I started my journey in creative school from first class to my senior 12th class, and now I am in IIT Jodhpur. So my inner build up, which is very useful from early ages, is done by creative. I can say that, uh, and also creative give me high insight for me to be a great student. Uh, So yes, and I joined Creative Ashram also like a we in class 10th, and from there I used to be like dream like an IITian, that I would be an IITian in my after 12th. So yes, Creative Ashram also helped me a lot, and after 10th I joined Creative ICCP program with Riaz Resonance, and that will helpful for me in my journey of IITJ also JE, and I able to crack IITJ. Okay, सो आप दोनों की ही जर्नी लगभग इनिशियल क्लासेस से ही क्रिएटिव में स्टार्ट हुई है. सो माय क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. When did you start thinking that you could be selected in IIT JEE with such a remarkable performance? हेमंत बताइए आप. आपने कब ऐसा सोचा कि हाँ अब मुझे लगता है ऐसा कि मैं मतलब IIT JEE की जो इतना नेशनल लेवल का इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है उसको मैं फाइट कर सकता हूँ एंड आई कैन बी अ गुड IITian. So like I said, I joined Creative Ashram along with Avi in 10th class.
सो जब से ही मतलब ऐसा माइंड में आ गया था कि यार आईआईटी में जाना है, ओके। और तब से ही देखना चालू कर दिया था कि यार आईआईटीएन बनेंगे, आईआईटी में जाएंगे। एंड गाइडेंस भी अच्छा मिला, फैकल्टी भी अच्छी मिली, पढ़ाई भी अच्छी हुई, तो फिर साकार हो गया सपना। अभी आपका क्या कहना है इस बारे में कि आपने कब स्टार्ट किया ऐसा सोचना कि यस एक अभी जो है एक आईआईटी अभी हो सकता है? सो जब मैं भी 9th क्लास में था, तब मुझे मनीष सर, जो हमारे किटी आश्रम में भी पढ़ाते हैं, वो मिले थे। एंड that was a मतलब turning point of my life kind of thing when I started going like from an average student to something extraordinary, when I started to learn new things and I was kind of keen interested in maths and science. And so from there I was like कि IIT में admission तो लेना है। एंड देन फिर 9th से थोड़ा बहुत बिल्डअप हुए, फिर 10th में थोड़ा बहुत सक्सेस मिली थी। देन थोड़ा लगा था कि हाँ आईआईटी क्रैक कर लेंगे, एंड देन फ्रॉम टीचर्स की गाइडेंस और उनके सपोर्ट से हमने वो कर लिया। ओके। जब आप लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे क्लास 11 से, तो आप लोगों का शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब आपका पढ़ाई का ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अपन को मेहनत करनी होती है, तो एक अपन परफेक्ट शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों का शेड्यूल कैसा रहता था उस समय? आपकी जो डे लाइफ है वो कैसे आप लोगों ने मैनेज की हुई थी? अभी बताएँ। मेरा शेड्यूल मतलब इस तरह से फिक्स नहीं रहता था, मतलब काइंड ऑफ कि 1-2 महीने कुछ शेड्यूल, 1-2 महीने कुछ शेड्यूल। बट देयर वाज समथिंग कॉमन कि मैं चाहता था कि मैं मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई में दे पाऊँ, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। And so my maximum schedule was like कि 6-7 घंटे सोना and coaching classes, and then other than it only study and the something like video eating and these things. So my schedule was like the maximum schedule I followed was like कि मैं सुबह 7 बजे से लगभग क्लासेस होती थी, तो सुबह मैं क्लासेस के अकॉर्डिंग जाता था, साढ़े मतलब 7 बजे की 6:30 काइंड ऑफ थिंग। देन 7 से जब भी क्लासेस 2 बजे तक फिनिश होती थी, फिर 2 बजे घर पे आके after eating lunch, and then I go to sleep for 1-2 hours. Then after it, I just then around 5-6 I started to study, and then like dinner and kind of things go till 1-2, like I was differently. And but this schedule changed during like when the advance was here, because that is very important to change, because the advance takes place in 9 to 12 and 3 to 5 hours. So I just try to that I am very active in these hours. So I stopped sleeping in afternoon. I sleep in night like 11 to 6 kind of thing, and then whole day I managed to study. This was my schedule. हेमंत, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि as everyone knows, your parents are very active politically and socially. Yes, sir. You have to go somewhere for attending social events and other family functions also. So how did you manage your studies? कहीं शायद हो सकता है आपको कहीं सैक्रिफाइस भी करना पड़ा हो, सोशल इवेंट्स या जो भी फैमिली फंक्शंस हैं उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा होगा। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल द थिंग्स? या सो हाँ, मेरी मतलब ज़्यादा पूरी फैमिली लगभग गंगापुर में ही रहती है। तो मीन्स लाइक अगर रात को अगर कोई इवेंट होता था, तो मतलब मैं दिन में उसको कवर अप करने की कोशिश करता था, मेरे क्वेश्चंस को और मेरे वर्क को, जो भी मेरा मतलब डेली रूटीन होता है, यार इन क्वेश्चंस को करना है, इस एक्सरसाइज को करना है, तो मैं उसको दिन में करने की कोशिश करता था। और कभी कभी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता था, पर ये कि मतलब अगर कभी कभी इवेंट्स के चक्कर में पढ़ाई रह भी जाती थी, तो मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था। मतलब उसको अगले दिन ज़्यादा पढ़ के फिर कवर कर लेता था, कवर अप कर लेता था। तो लाइक ऐसे ही हो गया, इवेंट्स तो ज़्यादा रहते थे। ओके। हेमंत, आपके घर में आपकी फैमिली में आपके ताऊ जी जो हैं, ताई जी जो हैं, वो डॉक्टर हैं। आपके फादर he also belongs to medical line. Then why did you think going in engineering line?
Was not there any pressure of going in a medical line also? थोड़ा बहुत था, जैसे मतलब हर कहीं कहीं होता है, जैसे थोड़ा बहुत प्रेशर तो था। प्रेशर नहीं, मतलब बोला तो था कि मेडिकल में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अच्छा। बट मेरा आई इंटरेस्टेड इन मैथ्स, फिजिक्स एंड ऑल लाइक स्टफ, सो मैंने इंजीनियरिंग लाइन चुनी। and I have bit confidence in engineering line rather than bio line, so I choose maths in my senior. Okay. Yes, अभी आपकी बड़ी सिस्टर इति, इन्होंने भी क्रिएटिव साइंस एकेडमी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। नाउ शी इज कंप्लीटिंग हर MBBS फ्रॉम RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो इज शी योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? क्या उनसे कुछ आपको प्रेरणा मिली कि मुझको भी आगे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है? या उसमें काफी सोर्स रहा था। मतलब कि जैसे वो मुझसे 4 साल बड़ी है, तो मैं मतलब उनको देखा था मैंने काफी पढ़ते हुए काइंड ऑफ, तो एंड देन शी गॉट सक्सेस, तो काफी उनको सराहना भी मिली थी। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आया था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एंड सो या उससे गाइड मतलब उनसे मुझे काफी गाइडेंस भी मिलती रहती थी कई जगह। सो या शी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। One thing, as everyone knows, and it is fact also, that in the selection of any student in JEE or NEET, faculties, study material, all India test series, these all things play an important role. So what do you say about all these things like faculties, study material and test series in creative ICCP? Now it is a Creative Science Academy. So अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा अलग अलग पूछना चाहूंगा। So what do you say about the faculties who used to teach you in 11th and 12th classes? Yeah. So our faculties are kind of very qualified in their professions. They have a great work experience. Like some teachers have experience more than of 10 years in preparation of JEE. So they know very much about JEE and their different parts. So the faculty role was very important, and they guided not only to subjects but also like to other things which are very important to JEE, like motivation and the schedule related things. And regarding material, we got a material from Resonance, and that material was very precise in itself. And that material, teacher, then we have test series. The test series were very good. We have given a template of test, like it will happen on this day and it will happen on this day, and it happened the whole year on that day only. So it was very important for checking our performance. So it was a very kind material and very kind testers and faculties. So Abhi, thank you very much, Beta, for your informations. Hemant, we would also like to listen you about the faculties, material and test series in Creative Science Academy or Creative ICCP program. फैकल्टी बहुत अच्छी थी, एंड लाइक IITians भी थे फैकल्टी में। IITians से पढ़ने का मौका मिला। सो रेजोनेंस इज अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट, सो फैकल्टी के भी मतलब टेस्ट होते थे, फैकल्टी के भी टेस्ट, तो फैकल्टी बहुत अच्छी थी। एंड अच्छा सा मटेरियल वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल, मींस फिल्टर्ड मटेरियल था, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब फिल्टर्ड मटेरियल था ऑन बेसिस ऑफ एग्जाम्स। एंड ऑल्सो क्रिएटिव साइंस एकेडमी की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी हेल्प मिली डाउट्स क्लियर करने में भी। लाइक Okay. Students, although we have to study all the subjects equally, we have to focus all the subjects equally just to complete the exams like JEE. But sometimes it does happen that we have some special interest in particular subject. So which was your favorite subject, Avi? Physics was my favorite subject.
but kind of some chapters of maths were also kind of very favorite. So like physics was favorite, and I used to give less time to physics because it was my favorite and I can study it like fastly than other subjects. So that was a good part. So I can give more time to chemistry and maths. Yeah. हेमंत, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा जिसने आपको आईआईटी जेई जैसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन को फाइट करने में आपको हेल्प की? My favorite subject is also physics. We both love physics, discuss about lot about physics. But I advise कि सारी subjects पे equal focus दिए जाए. जो strong है उस पे बल्कि थोड़ा सा कम दे सकते हैं कि हाँ अपनी strong है, अच्छे से कर सकते हैं. But सारी subject पे equal focus करना चाहिए. Okay. आप लोग दोनों लगभग हमारे हिसाब से यू बोथ वर इक्वल इन कॉम्पिटेंसी, तो आप लोगों को कभी कुछ कंपटीशन फील होता था कि मुझे अभी से आगे निकलना है या हेमंत से आगे निकलना है मुझको, ऐसा कुछ कंपटीशन की फीलिंग्स आप लोगों के अंदर होती थी? या ऑफ कोर्स, मतलब रहता कंपटीशन तो हमेशा रहता ही है कि अपन की जो साथ में है उनसे अपन को बेटर परफॉर्म करना है. बट दैट परफॉर्मेंस वाज, मतलब दैट कंपटीशन वाज वेरी प्रोडक्टिव. मतलब कि अगर किसी से कम या किसी के ज्यादा आते थे तो उससे इतना मतलब वो प्रोडक्टिव बहुत था कि मतलब अगर मेरे कम आ रहे इसके ज्यादा आ रहे तो मैं उससे सीखता था, या फिर इसके कम आ रहे तो वो मुझसे सीखता था. सो दैट वाज वेरी प्रोडक्टिव काइंड ऑफ कंपटीशन एंड दैट वाज वेरी गुड. ओके. आप बताएं हेमंत, आप लोग यहाँ 11th-12th में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स के बीच में आपस में जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कैसा था? स्पेशली आपका जो कॉम्पिटिशन रहता होगा वो शायद अभी के साथ रहता होगा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? या मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है तभी बच्चा नर्चरिंग इन्वायरमेंट होता है वो, बिल्कुल. कि हाँ प्रोडक्टिव होता है कि यार आगे निकलना है या फिर खुद से इम्प्रूव करना है. बाकी मेरा कंपटीशन तो ज्यादा मतलब अभी ज्यादा आगे था थोड़ा सा, तो मतलब मेरा कंपटीशन मेरे से ज्यादा रहता था कि यार अभी थोड़ा इससे भी आगे जाया जाए, इससे भी आगे जाया जाए, फिर अभी तक पहुंचा जाए, ऐसा रहता था. पर मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता था वो कि हाँ अब आगे इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूवमेंट ओके. एंड वो कंपटीशन से आता है इम्प्रूवमेंट. ओके. मेरा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप दोनों से मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आई थिंक जो भी बच्चा क्लास 10th के बाद 11th में आ रहा होता है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. जब आप दोनों स्टूडेंट ने क्लास 10th को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लियर किया क्रिएटिव स्कूल से, तो उसके बाद आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे फैमिली में भी एंड आउट ऑफ द फैमिली, आपके जो फैमिलियर लोग हैं आपके परिवार के लोगों ने आपको कोटा जाने के लिए मोटिवेट किया होगा, लेकिन आप दोनों ने गंगापुर में ही रहते हुए, क्रिएटिव साइंस एकेडमी में ही रहते हुए, अपने पेरेंट्स की गार्जियनशिप में ही रहते हुए आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस डिसीजन के पीछे जो आपका बेसिक रीजन था वो क्या था अभी? हाँ, इट वॉज वेरी सिंपल कि जो टीचर्स वगैरह है वो मतलब काफी अच्छी फैकल्टीज, काफी अच्छे एक्सपीरियंस से आने वाली हैं. जो मटेरियल एंड टेस्ट है वो भी पूरा रेजिडेंस का ही होने वाला है. सो एंड उससे ऊपर की अपन घर पे रह सकते हैं. तो देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ मतलब सोचना भी नहीं पड़ा कि मतलब ठीक है अब घर पे मतलब वी आर गेटिंग एवरीथिंग एट होम. सो इट वाज अ वेरी फास्ट डिसीजन टू स्टे हियर. हेमंत, आप बताएं, आपने कैसे डिसाइड किया कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई जो आगे की है जेई की प्रिपरेशन इसको गंगापुर में रहते हुए ही कंप्लीट करना है? मतलब 10th के बाद काफी लोगों ने कहा कि कोटा चले जाओ जेई की प्रिपरेशन के लिए. बट मैंने सोचा कि क्रिएटिव ने मुझे अच्छे से मतलब शुरू से ही अच्छे से पढ़ाया है, गाइडेंस दी है, एंड लाइक बाहर का आईसीसीपी प्रोग्राम भी लाया, तो मटेरियल मेरे को सारा कोटा लेवल का ही मिलेगा और फैकल्टी भी कोटा की ही मिलेगी. तो मतलब बाहर क्यों जाना, और अच्छे से पेरेंट्स की गाइडेंसशिप में रह के स्ट्रेस नहीं आता था. पेरेंट्स संभाल लेते हैं, काफी बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है पेरेंट्स के कारण. तो मैंने सोचा यार
गंगापुर में रह के ही किया जाए। और सही बात भी है, जब अपने पास ऑप्शन घर के अंदर ही होता है तो हाँ, हमें बाहर क्यों देखना चाहिए। सब अपने पास घर पे आ गया था तो बाहर के हाँ, लिए। डेफिनेटली। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू मिस्टर अभी। अभी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन you were called by the HODs of Resonance Quota for giving the finishing touch to your preparation. Do you find anything extraordinary in their teaching methodology? The basic teaching things are same, like love the teaching things, but but there are kind of some extra sessions like Viva sessions and kind of things. And the moreover, the thing that actually is a great, well, there was students who were kind of very above from me in study and marks. uh, so the most good thing I got there was कि students बहुत ऊपर थे मुझसे काफी अच्छे थे, and so मुझे थोड़ा एक काफी अच्छे लेवल का कंपटीशन मिल गया था. So that was the best part there, and the most of the part was same. Yes. So, in your opinion, when should a child start its preparation for JEE or NEET? From which class a student should start his preparation? हेमंत बताएं आप। सो आई थिंक दैट जैसे कि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जेई में, नीट में, सब चीज़ों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, तो मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए एक बच्चे को इन सब की प्रिपरेशन करना। लाइक आफ्टर 8th क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए, Okay. लाइक जेई के क्वेश्चन देखना, फिजिक्स वगैरह। अभी आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना ये है कि जैसे कि हमारे जैसे नॉर्मल 10th तक जो एजुकेशन होती है उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट बहुत ट्रिवियल होता है और बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होती है, मतलब अपन को सब कुछ पता होता है करना कैसे. बट देन भी जब 11th में शिफ्ट होते हैं तब बहुत कुछ अपने ऊपर आ जाता है कि अपन को ही पढ़ना होता है, अपन को ही क्वेश्चन करने होते हैं, फिर अपन को डाउट्स के लिए जाना पड़ता है. तो वो एक ड्रास्टिक चेंज होता है 10th से 11th में और उसके कारण काफी लोग डिस्टर्ब होते हैं. सो मेरा ये कहना है कि मतलब 8-9 से ही मतलब अपन को थोड़ा स्पून फीडिंग कम करनी चाहिए. जैसे कि जब मैं 10th में आश्रम में था तो वो भी काफी अच्छा था कि वहाँ पे मुझे नई नई चीज ट्राई करने को मिली, नई नई चीजें पढ़ने को मिली और खुद से बुक रीडिंग भी करने को मिला. तो उससे जो खुद डाउट क्लियर करने का, खुद आगे से क्वेश्चंस करने का एंड एक काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी का जो अच्छा सा एक एनवायरनमेंट था वो बिल्डअप होने लगा. सो मतलब कि 8-9 से बच्चों को मतलब स्पून फीडिंग कम करनी चाहिए और खुद के मतलब खुद से पढ़ने का फिर किसी ऐसे ही जहाँ पे अपन नॉर्मल जो स्टडी होती है उससे अलग, जैसे कि आश्रम में हमको उससे जो पढ़ाया था उससे अलग पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तो उससे काफी माइंड डेवलप होता है. तो काइंड ऑफ दैट वाज माय आंसर. So we should start in like 8th or 9th. Okay. But the most important thing there was कि we should learn but with an interest, like not for marks in that phase when we are studying out of spoon feeding. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें मार्क्स के लिए नहीं, अपने जो फंडामेंटल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर काम करना चाहिए. इनिशियली आप लोगों की ओपिनियन में क्लास 7th 8th से हमको 8th क्लास से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. गुड. आप दोनों, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि देखिए जब हम लोग जेई की, नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी अपने आप से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स का भी हम पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की भी, स्कूल की भी आपसे काफी एक्सपेक्टेशन होती है. तो ये जो एक स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर एंड टू परफॉर्म विद एक्सीलेंस, तो आपने बहुत अच्छी रैंक के साथ अपने इस कंपटीशन को फाइट किया है, तो आप लोगों ने इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? मतलब आपके जो ये एक्सपेक्टेशन जो सबकी थी उस पे आप खरे भी उतरे हो उस एक्सपेक्टेशन पे, बट हाउ डिड यू मैनेज ऑल द थिंग्स, ऑल दिस स्ट्रेस? सो लाइक स्ट्रेस जो होता है वो काफी अच्छा होता है, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो फिर अपन एक खुद को इम्प्रूव करने के लिए बिल्डअप, मतलब खुद को इम्प्रूव करने के लिए मूव नहीं करेंगे. तो वो स्ट्रेस एक हद तक अच्छा होता है कि अपन उससे ज्यादा चीजें मतलब
जैसे अपन 8 घंटे पढ़ रहे तो अपन 2 घंटे का ट्राई करते हैं बिकॉज अपन को और अच्छा करना है। बट वो स्ट्रेस की अगर अपन उस स्ट्रेस का बढ़ा ले खुद के ऊपर या फिर उसको काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं तो फिर वो थोड़ा ड्रास्टिक हो जाता है। तो मैं ऐसे कि जब थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हो रहा होता था कभी भी, तो आई यूज्ड टू शो, मतलब आई यूज्ड टू शो एनी कॉमेडी वीडियोस लाइक एनी कपिल शर्मा शो काइंड ऑफ थिंग्स। सो थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता था, या फिर थोड़ा बाहर घूम लो काइंड ऑफ, या फिर सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती थी वो थे टीचर से बात। मैं अगर मेरे पेपर में मार्क्स कम आया या फिर कुछ भी, तो मैं काफी 1-2 घंटे के लिए टीचर से बात बैठ रहता था, क्वेश्चन डिस्कस करता था कि कैसे होगा, मतलब मैं इसको मार्क्स कैसे इंक्रीज करूँ, या फिर मुझे और अच्छा स्कोर करना है तो मैं किस तरह से करूँ। स्पेशली बीएचएम सर ने काफी ज्यादा हेल्प की थी मेरी उस समय। सो दैट वाज द वे टू रिलीव स्ट्रेस। हेमंत आप बताएं, स्कूल का जो एनवायरनमेंट था उसने आपको कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हुए इतना अच्छा परफॉर्मेंस के आपको मतलब काबिल बनाया? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन तो सबों की होती है पहले, पर मतलब वो एक्सपेक्टेशन दिखाते नहीं थे। स्कूल में भी अगर मैं जाता था तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिखाते नहीं थे, एक्सपेक्टेशन होती थी। और ज्यादा मतलब मैं टीचर से इंटरेक्टिव रहता था तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता था। वो तुरंत कह मतलब ऐसे कर देते थे कि हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डाउट बता, ये वो। एंड लाइक माय फादर आल्सो वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं आने देते थे ज्यादा कि हाँ कोई बात नहीं, अगले पे ध्यान दे, अगले पेपर पे ध्यान दे। मतलब कभी हर बच्चे के उसमें आता है कि कभी कभी मार्क्स कम आते हैं पेपर में, बिल्कुल। पर मतलब उस पर स्ट्रेस नहीं आने देते थे कि हाँ ठीक है अगले पे ध्यान दे, कोई बात नहीं, इन टॉपिक्स को रख ले, इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना बाद में। तो एनवायरनमेंट भी ज्यादा अच्छा था, खुला खुला एनवायरनमेंट, क्रिएटिव में नाइस एनवायरनमेंट। Yeah. ओके। सो आप लोग अभी आईआईटी कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अभी आप आईआईटी कानपुर, ये जरूर है कि यहाँ कोरोना के कारण आप लोग अभी फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो नहीं पाए हो, बट यू आर टेकिंग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। आपके 2-2 3-3 सेमेस्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप लोग एट प्रेजेंट तो बीटेक कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपका अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? मतलब आफ्टर बीटेक व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर आल्सो? यस, अभी बताएं। हाँ, सो अभी मेरा ऐसा कुछ मतलब ऐसे प्रिसाइज एम कोई नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है। बट मैं अभी अलग अलग चीजें ट्राई करता हूँ। लाइक मैं मतलब हर चीज को ट्राई करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को। सो इट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल, बट या मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा जो मतलब अच्छा लगे वैसा कुछ करना है। तो इट इज मतलब पर जब आईआईटी में अपन हो जाते हैं तो अपन को बहुत इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अलग अलग चीजें ट्राई करने की। सो दैट so I am doing that thing today now. I am trying different things. हेमंत आपका क्या कहना है बेटा? सो आफ्टर गेटिंग इनटू आईआईटी ऐसा फील आया कि मतलब एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करा है मैंने, मतलब कि जैसे कोडिंग स्टफ होते हैं, बाकी स्टफ्स भी होते हैं, ड्रामा स्टफ, बहुत क्लब्स होते हैं इधर। तो मतलब एक्सप्लोरिंग में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एंड लाइक अल्टीमेट एम तो ऐसे कुछ खास नहीं, बट मतलब कि बढ़िया सी बिजनेस लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यू वांट टू यूज योर टेक्निकल नॉलेज इन या बिजनेस प्लेटफॉर्म। ओके। सो अभी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हो सिंस स्टार्टिंग। जेई की प्रिपरेशन आपने पूरी शिद्दत के साथ की और एक बहुत अच्छा मुकाम आपने हासिल किया। तो ऐसे ही हेमंत आपका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जेई के अंदर रहा, एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। आप लोगों ने आप लोग ने गंगापुर को गौरवान्वित किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे, सो दैट वो भी उसी रास्ते पे चलते हुए और एक अच्छा रिजल्ट जेई के अंदर या नीट के अंदर वो लोग प्राप्त कर पाए। तो
हेमंत, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि व्हाट मैसेज और टिप्स वुड यू लाइक टू शेयर विद योर जूनियर स्टूडेंट्स? सो मतलब मैसेज तो ये कि अपने फैकल्टी पे भरोसा रखो और फैकल्टी से इंटरेक्टिव रहो। मीन्स अगर डाउट आ रहा है तो उसको रखो मत, उसको पूछ लो, तुरंत पूछ लो, इंटरेक्टिव रहो। एंड लाइक स्ट्रेस उतना ही लो जितना मतलब प्रोडक्टिव है, वो तुमको फायदा कर रहा है। ज्यादा स्ट्रेस बेकार रहता है। एंड सो लाइक नॉलेज गेन करो। कोई भी दिन ऐसे वेस्ट मत जाने दो कि यार अब कुछ नहीं करा इस दिन। मतलब क्वेश्चंस करते रहो, ऐसे एक्सप्लोर करते रहो क्वेश्चंस एंड लाइक ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नीट। अभी आप बताएं। हाँ, सो आई थिंक कि सबसे पहले तो वो जो फैकल्टीज पे भरोसा रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, काइंड ऑफ फैकल्टी से अपने सारे डाउट डिस्कस करो। अगर कुछ भी डाउट आता है या फिर मतलब जे रिलेटेड कुछ भी होता है तो डिस्कस करो, या फिर आउट ऑफ जे भी कुछ डाउट आता है तो मतलब जितना उनसे इंटरेक्टिव रहेंगे वो सबसे बेटर रहेगा। एंड उसके अलावा जो पेपर्स वगैरह देते हैं उनका अच्छे से एनालिसिस करो। थोड़ा ब्रॉड एनालिसिस होना चाहिए उनका, लाइक कि अपन को एक एक क्वेश्चन का पता हो कि अपन ने क्या करा था, और जो अपन ने पेपर से मिस्टेक की उसको रिपीट ना करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उनके अलावा अपना जो होमवर्क डिप्यूज वगैरह होती है उनको टाइम पे करना, फिनिश करना बहुत जरूरी होता है। एंड अदर देन इट, टीचर्स जैसे कहते हैं वैसे फॉलो करो, एंड दैट इज इनफ। ओके, या सो एक बार मैं आप लोगों से जस्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डिफाइन क्रिएटिव इन योर ओन वर्ड्स। यस, अभी। क्रिएटिव इज काइंड ऑफ होम फॉर मी, बिकॉज मैं बचपन से यहाँ पढ़ा हूँ। सो यहाँ पे मतलब जो मेरा पूरा जो भी मैं आज हूँ या फिर, तो उसका सबसे बड़ा योगदान क्रिएटिव का रहा है। क्रिएटिव के मतलब क्रिएटिव का काफी बड़ा योगदान रहा है। मतलब अपन छोटे छोटे बच्चे जाते हैं एंड देन टुडे तो काफी अच्छा लगता है कि अपन जिस सालों से क्रिएटिव के अंदर थे, यहाँ पे टीचर्स वगैरह काफी ज्यादा उनसे लगाव भी है, काफी अच्छे रिलेशंस भी टीचर्स से। सो कि creative is kind of family for us, and yeah, that is creative, and we are a proud Creativian. Yes, yes, Hemant, in your words, define creative. Okay. So he said like creative is family. I am also in this family, creative family. लाइक से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और क्रिएटिव इज सो नर्चरिंग टू अस, लाइक गाइडफुल एंड वेरी फैमिलियर इन्वायरमेंट। टीचर्स का भी काफी फैमिलियर इन्वायरमेंट, बाकी फैकल्टी का, छोटी से लेकर बड़ी फैकल्टी, हर फैकल्टी मतलब अच्छे से रहती थी, इंटरेक्टिव रहती थी, फैमिलियर रहती थी, सपोर्टिव रहती थी। लाइक क्रिएटिव मेड अस लाइक। Okay. So, thank you, Avi and Hemant, for joining this program, for ending this program on a very short notice. And we would like to continue such programs in coming future also. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Avi. Thank you, Hemant. Thank you, sir. Thank you, sir.